نہال کے بعد دانیال اور اب طلال، 1 لاکھ روپے جرمانہ اور نااہلی کے 5 سال۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے سابق رکن اسمبلی کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ صرف ایک ہی کمپین کرتے رہے کہ یہ اگر اس فیصلے سے عدالت کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، عدالت کی عزت میں اضافہ ہوا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ توہین آئین کی سزا پر ہی عدلیہ کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ طلال چودھری کہتے ہیں اگر مجھے سزا دے کر عدالتی وقار میں اضافہ ہوا ہے تو سزا قبول کرتا ہوں۔ نااہلی کے بعد طلال چودھری نواز شریف سے ملنے اڈیالہ جیل جا پہنچے۔ جی حضوری کرنے والوں کا ٹولہ اپنے انجام تک جا پہنچا۔ فیصلے کے بعد اب ہر کوئی احتیاط کرے۔ شیخ رشید کا فیصلے پر رد عمل۔ نعیم الحق کہتے ہیں عدلیہ کی توہین کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما امیر مقام کی بھی نیب میں پیشی۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں پوچھ گچھ۔ امیر مقام کا کہنا ہے نیب نے آمدنی کے ذرائع کا پوچھا ہے، سب کو پتا ہے کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے لیے دوڑ تیز، آدھے درجن سے زائد امیدوار میدان میں، کس کو عہدہ دوں کسے انکار کروں؟ کپتان بھی شش و پنج میں پڑ گئے۔ ترین گروپ وسطی پنجاب سے وزیر اعلیٰ لانے کے لیے سرگرم۔ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے جام کمال اور یار محمد رند میدان میں۔ سٹار بلے باز جہانگیر ترین جام کمال کے حمایتی۔ تحریک انصاف بلوچستان یار محمد رند کے لیے گوشاں۔ دونوں طرف سے اختر مینگل کو منانے کی کوشش۔ سردار اختر مینگل اور یار محمد رند کی عمران خان سے ملاقات متوقع۔ جام کمال اختر مینگل کو رام کرنے کے لیے بلوچستان ہاؤس جا پہنچے۔ وزارت اعلیٰ کے لیے حمایت کرنے پر اصرار۔ جام کمال کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے لچک دکھا سکتے ہیں۔ اختر مینگل کی مشروط آمد۔ اپوزیشن تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار۔ آج آل پارٹیز کانفرنس میں اہم فیصلے متوقع۔ پیپلز پارٹی کا وفد بھی اے پی سی میں شرکت کرے گا۔ متوقع وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری سادگی سے کرنے کا فیصلہ۔ فواد چودھری کہتے ہیں چند دوستوں کے علاوہ بیرون ملک شخصیات کو مدعو نہیں کیا جائے گا۔ ووٹ ہے نا شناختی کارڈ پھر بھی بن گئے امیدوار۔ افغان شہری علی احمد بلوچستان کے ایم پی اے بن گئے۔ تعلق ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ ناظرہ نے شناختی کارڈ بلاک کر رکھا تھا۔ دوبارہ گنتی الٹی پڑ گئی۔ ای پی کے 70 پشاور سے تحریک انصاف کے شاہ فرمان دوبارہ گنتی میں ہار گئے۔ این پی کے خوش دل خان 187 ووٹوں سے کامیاب۔ پہلے 47 ووٹوں سے شاہ فرمان جیتے تھے۔ این 108 فیصل آباد میں مخصوص پولنگ اسٹیشنوں کی گنتی دوبارہ مکمل، کچھ دیر میں اعلان ہوگا۔ نواز شریف مریم کیبنٹ ڈائٹ صفدر سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ شہباز شریف، مصدق ملک، احسن اقبال، جاوید ہاشمی اور دیگر رہنما پہنچے۔ نواز شریف کے خلاف ریفرنسز کی دوسری عدالت منتقلی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری۔ معاملہ بددیانتی کا نہیں، جانبداری اور غیر جانبداری کا ہے۔ انصاف صرف فیئر ٹرائل سے ہی ممکن ہے۔ خواجہ حارث کے دلائل۔ سپریم کورٹ میں شوگر ملز منتقلی کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی سزا مسترد۔ التوا مانگنے والوں کو 1 لاکھ روپے ڈیمز فنڈ میں جمع کرانے کا حکم۔ حسیب وقاص شوگر ملز اب جنوبی پنجاب میں آپریشن بند کر دے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ شریف خاندان کی شوگر ملز منتقلی کیس کی سماعت 20 اگست تک ملتوی۔ اورنج لائن منصوبے پر نیب کی تحقیقات کی تلوار۔ ایل ڈی اے افسر خود کو بچانے کی فکر میں، رات گئے تک ریکارڈ کی درستگی۔ انکوائری سے پہلے ریکارڈ ٹیمپر کیے جانے کا امکان۔ ٹانک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ اسسٹنٹ کمشنر کرامت اللہ جام حق راہگیر زخمی۔ خوزدار میں بھی 2 افراد قتل۔
लाहौर के इलाके कोट लखपत में लेस्को मुलाजमीन का एहतजाज, रास्ता मांगने पर मुजाहिरीन काम शहरियों पर तशद्दुद। लेस्को ऑफिसर रमजान समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में मैरिज हॉल एसोसिएशन का FBI के खिलाफ मुजाहिरा। बाजारों में झंडियों वेजिस के स्टॉल लग गए, घरों पर भी हलाली परचम लहराते गए। ही मवेशी मंडियां सज गईं, जानवरों की खरीदो फरोख्त, ग्राहकों को कम कीमत और तगड़े जानवर की तलाश। पेशावर में व्यापारियों की गाहक कम होने की दुहाई। साथ मैं हूँ महविश निसार, मैं हूँ अबूजर मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, दोबारा गिनती के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट गंवा बैठी है। पेशावर के हल्का PK-70 में दोबारा गिनती में 47 वोटों से हारने वाले खुशदिल खान 187 वोटों से कामयाब करार पा गए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बड़ी खबर है, दोबारा गिनती के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट गंवा बैठी है। मजीद जानते हैं अनिला शाहीन से। अनिला, बताएगा क्या रिजल्ट आया, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शाह फरमान PK-70 और PK-71 दोनों से अपने से कामयाब करवाने में कामयाब हुए थे, लेकिन दोबारा गिनती में अवामी नेशनल पार्टी के साबिक डिप्टी स्पीकर खुशदिल खान ने 187 से ये सीट जीत ली है। मुसलसल 6 रोज तक ये गिनती चलती रही है। दोबारा रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई थी अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से। 6 रोज के बाद जो आज हतमी रिजल्ट सामने आया है, उसमें अवामी नेशनल पार्टी अपनी ये सीट बचाने में कामयाब हुई है। तो अभी तक तो यही है कि जो सरकारी नताइज सामने आए हैं, उसमें जो पहले नतीजा था 47 वोटों से शाह फरमान इस सीट को जीत चुके थे, लेकिन अभी जो नतीजा सामने आए हैं 187 की लीड से यहाँ से ये सीट अवामी नेशनल पार्टी ने जीती है। इस वक्त जो हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट मौसूल हुआ है, उसमें 14,871 वोट शाह फरमान के मुकाबले में हासिल किए हैं अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट ने, और 14,684 वोट शाह फरमान ने हासिल किए हैं। तो 187 की लीड से अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त 7 नशिस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपनी नुमाइंदगी करेगी। एक खातून किसी का अगर उनको मिलती है तो 8 नशिस्तों के साथ अवामी नेशनल पार्टी इस बार सूबाई हुकूमत का हिस्सा बनेगी। अभी तक यही है कि शाह फरमान एक सीट हार चुके हैं, एक सीट के साथ वो अभी भी PTI के साथ अपनी नुमाइंदगी जाहिर कर रहे हैं। जी शुक्रिया अनिला शाहीन। और आपको बताएं कि नाअहलियों का सिलसिला जारी है। पहले निहाल, फिर दानियाल और अब तलाल चौधरी भी नाअहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने तलाल चौधरी को 5 साल के लिए नाअहल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदलिया मुखालिफ तकारीर साबिक वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी को पड़ गई महंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर फैसला सुना दिया। तलाल चौधरी को अदालत बर्खास्त होने तक कैद की सजा भी सुनाई गई। इसके अलावा उन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। तलाल चौधरी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी भुगतना होगा। फैसले से कबल मीडिया से बातचीत में तलाल चौधरी ने कहा कि जब जद्दोजहद की जाती है तो सब जहन में रखना पड़ता है। हमारी लड़ाई कोई इदारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए है। हम चाहते हैं कि अदारे मुतनाज़े ना हो बल्कि अदारों का वकार हो। हम अपनी ये जिद्दोजहद वोट को इज्जत दो के नारा जो है उसको अमली तौर पर तहरीक की सूरत में हुकूमत में हो या अपोजिशन में वो हम जारी रखेंगे। तलाल चौधरी को आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नवाब शेर वसीर ने 1,09,708 जबकि तलाल चौधरी ने 97,869 वोट हासिल किए। नाअहल करार दिए जाने के बाद तलाल चौधरी के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 नुकरी बेंच ने केस का फैसला 11 जुलाई को महफूज किया था। तलाल चौधरी के वकील कामरान मुर्तजा ने अदालत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की इस्तदा भी की। तलाल चौधरी को जिस तकरीर पर नाअहल किया गया, आइए वो तकरीर आपको सुनवाते हैं। तलाल चौधरी की नाअहली पर मरियम औरंगजेब हक्का बकई, चलते कदम रुक गए, मुंह खुले का खुला रह गया। 24 न्यूज ने तलाल चौधरी की नाअहली की खबर सुनाई तो मरियम औरंगजेब की क्या हालत हुई, आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर।
طلال چودھری صاحب کو فیصلہ آ گیا اور سزا سنائی گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنائی گئی ہے جی 5 سال کے لیے نااہل اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. السلام علیکم میڈم. السلام علیکم سر. طلال چودھری صاحب کو فیصلہ آ گیا اور سزا سنائی گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنائی گئی ہے جی 5 سال کے لیے نااہل اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. چلیں آپ کو سنا دیے تو پتہ کرتے ہیں اندر آ کے واپس آ کے بول. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کرائیں. یہ اپوزیشن سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان معاشی طور پر اس جگہ سے گزر رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں، جمہوریت کی سوچ رکھتے ہیں، تو آپ کو عمران خان کو فری ہینڈ دینا چاہیے. ہم سب لوگوں کی طرف ہمارے دیکھیں، اقتدار کی ایک ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے، اپوزیشن کی ایک ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے. اقتدار میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مخالف کا بھی دل جیتنے کی کوشش کرے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس سارے عمل میں کہ ہم لوگوں کے دل جیتیں، ایک بہتر فائنینشیل سیٹ اپ اور ایک بہتر بیوروکریٹک آنیسٹ سسٹم کو متعارف کرائیں، پولیس کے نظام میں بہتری لائیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے زیادہ اٹریکشن پیدا کریں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ابھی میں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی 25 تاریخ کے بعد، کیونکہ جس حلقے میں تھا نہیں میں، جہاں راشد شفیق نے کام کیا، وہاں انہوں نے مجھے کم و بیش 30,000 کی جیت دی. لوگوں میں ووٹ ڈالنے کی پوری صلاحیت ہے، لوگ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. اور آگے ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کونسلروں کے الیکشن میں 2,000 ووٹوں سے آ رہے ہیں، اس ملک کی بدنصیبی ایسی ہے جو میونسپل کونسلر 2,300 ووٹوں سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے اوپر. ایسے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اس ملک میں جسے 6-6 7-7 ووٹ پڑتے ہیں. ایسے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جن کو کوئی ووٹ ہی نہیں پڑا، صرف یہ لوگ میڈیا اور کمپنی کی مشہوری کے لیے، صرف اور صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. جو جینون لوگ ہیں، میں آن دی بہاف آف عمران خان یہ کہنے کے لیے تیار ہوں ذمہ داری سے کہ اگر جینونلی کوئی سمجھتا ہے، جینونلی یہ سمجھتا ہے کہ کسی حلقے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آئے ٹی وی پہ پروگرام کرے. ہم اس کا حلقہ بھی کھولنے کے لیے تیار ہیں، ری کاؤنٹنگ بھی کرانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ری کاؤنٹنگ میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے مور، پھر وہ گنتے ہیں 2 خانے. دیکھو یہ لوگوں کو، میڈیا کو بتانا چاہیے کہ یہ 2 خانے جو ہیں اوپر والے میں زیادہ ہیں، یہ 2 خانے نیچے والے میں کم ہے، اس سے 100-200 کا فرق پڑ جاتا ہے. میں آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کے میں ساتھ ہوں، اور آئندہ 72 گھنٹوں میں میرا خیال ہے، یا 24 گھنٹے اور لگا لیں، عمران خان اپنی گورنمنٹ کا فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے. عوامی مسلم لیگ، شیخ رشید ماسز میں، میڈیا میں اور حکومت میں عمران خان کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. جی کوشچن. دیکھیں سر جی، گزارش یہ ہے کہ اصل مسئلہ مولانا فضل الرحمان کا ہے. اب اسفندیار کی ایک سیٹ ہے، جدھر مرضی لیا پھرے، وہ 1 ہے یا 2 ہے مجھے نہیں، 1 ہی ہے، میں 1 ہی. اب آپ وہ دیکھیں نا کہاں گئے وہ شمشمے اور دبدبے، اور وہ افغانستان سے لے کر کوالہ تک سب باتیں ختم ہوگی، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پٹھان نے دوسری دفعہ ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے، زندگی میں پٹھان دوبارہ ووٹ نہیں دیتا اس پارٹی سے، وہ بہت جلدی ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. یہ عمران خان کی بڑی پارٹی ہے، اس کا فیصلہ. بہرحال نون لیگ میں ایک فارورڈ گروپ جو ہے انگڑائیاں لے رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے وقت سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی. ذرا ٹائمنگ میری ٹائم اینڈ ٹیون ٹھیک نہیں ہے،
سو تیار بیٹھا ہوا ہے جاگر پہن کے. جب میں نے کہا تھا کہ 42 بندے جاگر پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ نے میرا سیاست میں جینا مشکل کر دیا. میں وقت سے بہت پہلے ملتان میں کہا کہ 42، اب تو یہ 60 تھے جناب. میں نے تو 42 کہے تھے، یہ 60 تھے جو جاگر پہنے ہوئے تھے. کدھر گئے آواز لگا رہی اور یہ شمشمے لوگوں نے مسترد کر دیے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. یہ سب میڈیا کھیل رہے ہیں. اگر میری سچی بات آپ کو پسند ہے، اندر سے سب ملے ہوئے ہیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. بس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اتنے تپڑ ہی نہیں ہے اس میں. یہ سارے میڈیا کھیل رہے ہیں. ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں. صرف شیخ رشید ہی ایسا انسان ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، جس کی کوئی خواہش نہیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، سب رابطوں میں نام دوسروں کا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کل گھر میں ایک نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جی سر. اگر آپ میری بات پہ یقین کرتے ہیں تو میری 65 سال عمر ہو گئی ہے. نومبر میں 66 سال کا ہو جاؤں گا. میں اپنی توہین محسوس کرتا ہوں کہ کسی سے میں وزارت مانگوں. جو جہاں اللہ کو میری منظوری ہے میں وہاں کام کروں گا. مجھے سمندر کی لہروں پہ بھی گرنے میں لگا دیں گے شیخ رشید ہے. آپ ادھر ہی ہوں گے. یہ سارا میڈیا بھائی، میں قوم کی نیچر تو نہیں بدل سکتا. دیکھیں نا، میں قوم کی نیچر نہیں بدل سکتا. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے. جن کے خاندانوں کے خون میں بکنے اور بکنے کا اثر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ انگریزوں کے دور سے بکتے آ رہے ہیں. جی انصاری. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے گرینڈ الائنس نہیں بنے گا، بلکہ یہ الائنس انشاءاللہ اس میں سے کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ چلیں گے. نثار میرا ساتھ چھوڑ گیا، ورنہ ہم 2 تھے. دیکھیں، عمران خان کو سب کچھ سمجھ ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ شاید اس کو سمجھ نہیں ہے. 20 سال سیاست میں بہت ہوتے ہیں یار. 20 سال سے وہ سیاست میں ہے. اس کو اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے لیے اور پاکستان کے لیے اور غریب عوام کے لیے کون موضوع ہے. اور جو اس نے آئیڈیا دیا، لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں. اب اس آئیڈیا پہ لوگوں کے معیار پر پورا اترنا یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے. میں یہی ہوں، آپ آرام سے کریں. مجھے پتا ہے جیل میں ہیں، حوصلہ ہارے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کو تھوڑی اور سہولت دے دو، حوصلہ نہ ہاریں، کہیں NRO ہی نہ ہو جائے. میں نے کہہ دیا کہ اس کو اور سہولتیں دو، کہیں NRO نہ ہو جائے. طاہر القادری صاحب کا مجھے مبارکباد کا فون آیا تھا. دوسری جانب نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام نیب آفس پیش ہوئے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ 15 دن کے اندر سوالوں کے جوابات جمع کروا دوں گا. لمبے چوڑے سوال نہیں پوچھے گئے. انہوں نے تحریک انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سب پرانے مستری ہیں. حیران ہوں کہ کیسے کارکردگی کے بغیر 100% سے زائد ووٹ مل گئے. آج کی کوئی اور لمبی چوڑی نشست نہیں تھی، وہی بات تھی. پروفارما انہوں نے دے دیا ہے اور میں نے ان کو فل تعاون کا یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ سب کچھ سامنے آ جائے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا کیا چیزیں. انہوں نے وہی دے دیا اور ہم اس کو 15 دن کے اندر بھر کر اس کو دوبارہ داخل کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ نئے مستری آئیں گے اور نیا پاکستان بنائیں گے.
मगर वही के PK में तो हम इन मिस्रियों को देखे जो दीवारें बनाए सारे टीड़े और सारे गिरने वाले हैं, तो उसकी वोट ये हैरत की बात है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने बिलावल हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमारे एजेंट्स को अभी तक फॉर्म 45 नहीं मिले। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली गईं। आम इंतखाबात से कबल GTA को पूरा माहौल बनाकर पेश किया गया और मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी का मैंडेट चोरी किया गया। केयरटेकर गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द वे जाकर उनको अकोमोडेट किया और ECP ने भी आउट ऑफ द वे जाकर अकोमोडेट किया। हमारी शिकायत इतनी नहीं सुना जाती थी जितनी GDA की सुना जाती थी। पहली बात कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट का नफाज होना था उसमें GDA ने कहा कि हमें अपना जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसके बाद जो केयरटेकर सेटअप बना उसमें सबको ये इन्फॉर्मेशन है कि उनके रिकमेंडेड लोग भी केयरटेकर सेटअप में आए। ना वोट है ना शनाख्ती कार्ड, फिर भी इलेक्शन जीत लिया। नादरा ने अली अहमद कजाद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया है। नादरा हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी होने पर अली अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया था। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक ट्राइब्यूनल ने अली अहमद को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त दी थी। तो आपको बताएंगे तमाम मामले पर अपडेट हुई है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक ट्राइब्यूनल ने अली अहमद को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त दी थी और तमाम सूरत हाल नादरा हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी होने पर अली अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया था। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 24 न्यूज़। जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल, अहम मुलाकात हुई जो कि तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के फैसले के खिलाफ अपील के मामले पर बातचीत भी हुई है और दीगर सियासी मामलात पर भी बातचीत हुई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी अडियाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि इस वक्त अडियाला जेल में हैं, कैद में हैं, उनसे मुलाकात की है। 45 मिनट तकरीबन ये मुलाकात जारी रही। मुलाकात में एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के फैसले के खिलाफ अपील के मामले पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा दीगर जो है मामलात उन पर भी बातचीत हुई है। जी हाँ बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है मियां शहबाज शरीफ की और ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही है और सज़ा के खिलाफ अपील करने के हवाले से भी इस मुलाकात में डिस्कशन की गई है और मियां शहबाज शरीफ के अलावा नून लीग के दीगर रहनुमाओं की भी आज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, अहम मुलाकातें आज जो हुई हैं उनमें आपको बताएंगे शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। इसके साथ साथ तलाल चौधरी, परवेज़ रशीद भी आज मिलने गए अडियाला जेल। इसके साथ साथ दीगर रहनुमा भी हैं जिनमें जावेद हाशमी भी शामिल हैं, वो भी आज मुलाकात करने गए मियां नवाज शरीफ से। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन का मुजफ्फरगढ़ में एक और निशाना कामयाब हो गया। मुजफ्फरगढ़ यानी 181 से आज़ाद जीतने वाले शबीर कुरैशी को भी खिलाड़ी बनाने की कोशिश कामयाब हो गई है। शबीर कुरैशी आज जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन का मुजफ्फरगढ़ में एक और निशाना कामयाब हो गया है। मुजफ्फरगढ़ में NA 181 से आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवार भी खिलाड़ी बनने को तैयार हो गए हैं। शबीर कुरैशी जो कि अब कप्तान की टीम का हिस्सा होंगे, शबीर कुरैशी आज जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में भी जहांगीर तरीन का निशाना कामयाब हो गया है। मुजफ्फरगढ़ NA 181 से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले शबीर कुरैशी को भी खिलाड़ी बनाने की कोशिश कामयाब हो गई है। शबीर कुरैशी आज जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे और इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि शबीर कुरैशी भी अब कप्तान की टीम का हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन का मुजफ्फरगढ़ में एक और निशाना कामयाब हो गया है। बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद मैदान में आ गए हैं। स्टार बल्लेबाज जहांगीर तरीन जाम कमाल के हिमायती हैं। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान यार मोहम्मद रिंद के लिए कोशां है। दोनों तरफ से अख्तर मैंगल को मनाने की कोशिश की जा रही है। सरदार अख्तर मैंगल और यार मोहम्मद रिंद की इमरान खान से
मुलाकात भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए जाम कमाल और यार मोहम्मद रिंद मैदान में हैं, जबकि जहांगीर तरीन जाम कमाल के हिमायती हैं। ब्यूरो चीफ ईसा तरीन से इस बारे में जानते हैं। ईसा तरीन, बताइएगा किस कदर इम्कानात हैं कामयाबी के? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला शिप और हुकूमत साजी में मुख्तलिफ वक्तों में फासले और तब्दील होते रहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अख्तर मेंगल, जाम कमाल और सदर मोहम्मद रिंद इस्लामाबाद में डेरे जमाए हुए हैं। तो लम्हा ब लम्हा सूरत तब्दील होती जा रही है। वैसे जाम कमाल जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी फतेह शो किए है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जाम कमाल को अपना कायद अहवान नामजद कर दिया है। हम दूसरी जानिब से जो तहरीक इंसाफ के यार मोहम्मद रिंद है, वो भी मैदान में उतरे हैं कि वो भी वज़ीर आला बनना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सदर अख्तर मेंगल की भी खिदमात हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में उनकी मुलाकातें भी हुई है। हम अभी तक तो कोई वाज़ेह सूरत सामने नहीं आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान जो अवामी पार्टी जाम कमाल उनकी तादाद के लिहाज से लोग ज़्यादा हैं और वो वज़ीर आला बन सकते हैं। लेकिन जमात उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ अगर एक पेज पर आ गए तो जाम कमाल के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। सदर मोहम्मद रिंद जो इस वक्त इस्लामाबाद में है, उन्होंने भी सदर अख्तर मेंगल से मुलाकात की और जाम कमाल से भी मुलाकातें की। अब से थोड़ी देर पहले उनका एक बयान आया था कि उनका जाम कमाल के वज़ीर आला बनने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सूरत इस तरह नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। कोशिश यही की जा रही है कि सदर अख्तर मेंगल को वज़ीर आला बनाया जाए, क्योंकि बा पार्टी में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो अपनी क़यादत से नाराज़ है और वो किसी और पार्टी यानी सदर अख्तर मेंगल या सदर को वज़ीर आला बनाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया ईसा तरीन। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सामने दरीना मसाइल रखे हैं। अख्तर मेंगल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतालिबात के हल के बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। साबिक हुकूमत से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, जबकि तहरीक इंसाफ भी बलूचिस्तान के मसाइल हल करना चाहती है। जाम कमाल का कहना था कि सियासी जमातों के एक दूसरे के साथ रवाबित होने चाहिए। हुकूमत तो पहले भी हो चुकी हैं, हुक्मरान तो पहले भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत करने का वो अंदाज़ या हुकूमत से जो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था वो उस वक्त भी नहीं मिला। जहाँ तक कि हुकूमत में शमूलियत का ताल्लुक़ है, मैंने जान साहब और उनके साथियों के सामने ये अर्ज़ पेश किया कि बलूचिस्तान में हमारा JUI या MMA के साथ एक इत्तेहाद है। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, इनके लोग जीते हैं, कहीं से हमारे लोग जीते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने खड़े हैं और एक मुश्तरका एक बड़े अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं। जनाब सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब और खालिद मकसी साहब का आपस में इलेक्शन हुआ था, तो उस तनाजुर में अगर आप इसको देखें, लेकिन इलेक्शन का फेज़ जब ख़त्म होता है तो फिर पार्टी पॉलिसी सामने आती है। ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। आज स्पीकर हाउस में APC की बैठक होगी। सरबराही MMA के सदर मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मजबूत ऑपोजिशन का रोड मैप भी फाइनल किया जाएगा। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा आज APC में कौन कौन शिरकत कर रहा है? देखिए, APC में MMA की तमाम जमातें शामिल होंगी। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इसमें शिरकत की दावत दी गई है, जबकि दीगर जिन पार्टियों से रब्ता हुआ था उन सबको भी ये कहा गया था कि APC में आए अपोजिशन की तमाम जमातें, ताकि मुस्तकबिल का रोड मैप बनाया जा सके। आज का APC का इजलास बहुत अहम होना है, क्योंकि इसमें जो आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं वजीर आजम के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, उस हवाले से अपोजिशन जमातों ने अपना हतमी लाएअमल मुरतब करना है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने अरकान के जो है उन नाम भी देने हैं कि इसमें कौन इलेक्शन किस नशिस्त पर लड़ सकता है। लेकिन इससे पहले एक अहम बात आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का वफ्द 1 घंटा पहले ही पहुंचा है अयाज सादिक के घर पे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात जारी है। पीपल्स पार्टी के वक्त में खुर्शीद शाह है, यूसुफ रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर और शेरी रहमान कोर ग्रुप है ये पीपल्स पार्टी का। तो APC से पहले मुशावरत करने पहुंचा है और दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं मुस्तकबिल के हवाले से लाइन ऑफ एक्शन तय कर रही हैं। जी ठीक है, शुक्रिया इरफान मलिक। PTI हर रोज कह रही है कि नंबर गेम पूरा है, मगर फिर भी पंजाब में हुकूमत साजी से गुरेजा है। KB में अक्सरियत के बावजूद नए वज़ीर आला की मुंह दिखाई ताहाल नहीं हो पा रही।
पंजाब में हुकूमत हम ही बनाएंगे, ये वो तराना है जो पीटीआई गुज़श्ता कई रोज से गा रही है और गाए चली जा रही है। अब तो वंस मोर की आवाजें आना भी बंद हो गई। साहब नंबर पूरे हैं तो इन्हें शो क्यों नहीं करते? हामी अरकाने असम्बली के हमरा एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला खत्म क्यों नहीं करते थे? क्यों लटका रखा है अवाम को इंतजार की सूली पर? पंजाब हुकूमत न हुई, किसी माशूक के महमल का पर्दा हो गया जो उठ के दे ही नहीं रहा। चलिए पंजाब में कुछ मुश्किल है तो केपी में ताखीर क्यों? माना वजारत आला के लिए उम्मीदवारों की कसरत है, मगर सब कह रहे हैं कप्तान का फैसला कबूल होगा तो कर दीजिए ना नए वजीर आला का ऐलान, ताकि खिलाड़ियों की वफादारी जांची जाए और नई हुकूमत की मुंह दिखाई भी हो जाए। हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत सरगर्म है। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में आज भी अहम इजलास होने हैं। जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा बनीगाला में इस वक्त मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वलीद चौधरी से। वलीद चौधरी बताएगा, अहम इजलास आज भी जारी हैं बनीगाला में? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत जो एक अहम मुशावरती इजलास है वो शुरू हो चुका है और उस इजलास में जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी शरीक है। और आज चूँकि सुबह जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जो सरबराह हैं अख्तर मेंगल, उनसे भी जो रहनुमाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईमुल हक और जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने जो है वो मुलाकात की थी और इस चीज़ पर जो है वो कायल करने की कोशिश की कि जो वफाक में नंबर गेम है वो उसमें जो है वो उनका साथ दें, ताकि जो बलोचिस्तान हुकूमत है, क्योंकि जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है वो जो है वो बलोचिस्तान में एक अक्सरियती जमात के तौर पर जो है वो सामने आई। और जो जहांगीर तरीन है उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उस आज से 2 रोज़ पहले इसी मुकाम पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जो जाम कमाल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो वज़ीर आला बलोचिस्तान के कैंडिडेट होंगे और उनकी जो है वो हिमायत की जाएगी। तो इसी वजह से जो बलोचिस्तान की जो पार्टीज़ और बलोचिस्तान के जो अरकान हैं वो भी इस वक्त जो है वो खासी अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर अगर आप बात करें वफाक में नंबर गेम की, तो आज जो मुलाकात हुई अख्तर मेंगल से, तो उस हवाले से जो नईमुल हक और जो यार मोहम्मद रिंद हैं वो इमरान खान को उस मुलाकात के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और जो कुछ उस मुलाकात में तय पाया और जो मुतालबात अख्तर मेंगल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वलीद चौधरी आगाह करने के लिए। जारहाना बॉलिंग, टाइट फील्डिंग, अपोजिशन ने नई हुकूमत को पहले दिन से ही खींच के रखने की पॉलिसी बना ली है। कोई लूज बॉल दी जाएगी, ना ही कोई कैच छोड़ा जाएगा। अपोजिशन जमात की हुकूमत को हनीमून पीरियड मनाने की मोहलत देने से इनकार कर दिया। किसी भी मौके पर मैदान खाली न छोड़ने का फैसला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के ओहदों पर इंतखाब में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा। अपोजिशन का फौरी और असल हदफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे को हासिल करना है। वज़ारत उज़्मा के बरक्स स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। अपोजिशन की कोशिश है कि इन दोनों ओहदों पर इनके नामजद करदा नुमाइंदे कामयाब हों। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमएमए ने अपने रहनुमाओं के साथ मशावरत शुरू कर दी है। तमाम जमातें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुजव्वज़ा नाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगी। जराए कहते हैं स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया रायशुमारी को बुनियाद बनाया जा सकता है। एमक्यूएम को अपोजिशन का हिस्सा बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम पर वाज़ेह कर दिया है, अगर इसने वफाक में हुकूमत में शमूलियत की तो इसे सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। सितंबर में सदर के ओहदे की मुद्दत खत्म हो रही है। अपोजिशन को उम्मीद है सेनेट और सिंध असम्बली में अक्सरियत, जबकि पंजाब असम्बली में मुस्तहकम नंबरों के बायस वो इस ओहदे पर बआसानी अपना उम्मीदवार ले आएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कोई भी गैर मुल्की सियासी रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अफ़गान मसले का हल सियासी है, फौजी हरगिज़ नहीं। अस्सलामुअलैकुम।
तर्जमान दफ्तर खारजा ने तहरीक इंसाफ की ट्वीट का हवाला देते हुए वाज़ह किया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म समेत कोई भी गैर मुल्की सियासी रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म की हलफबरदारी तकरीब में शरीक नहीं होगा। मोदी की इमरान खान को मुबारकबाद देना खुश आइंद है। कोई फॉरेन लीडर्स वीवीआईपी लीडर्स जो हैं वो ओथ टेकिंग में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी सादगी के साथ की जाएगी, इसमें पीटीआई ज़्यादा रोशनी डाल सकेगी। जनाब तर्जमान का कहना है कि तवक्को है 2016 से ना होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मेजबानी में दोबारा शुरू होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साल से राब्ते में हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग एग्री हुआ 2015 का, वो आगे चलाया जाए और मसाइल के हल की तरफ बढ़ा जाए। और सार्क समिट 2016 नवंबर में होनी थी, पाकिस्तान उसको होस्ट करने को तैयार है। उस सिलसिले में भी आगे बढ़ा जाए। उम्मीद रखते हैं हम कि ये मामलात हल होंगे और हम आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। जनाब पाक फौज के पायलट्स की जानब से 6 रोज तक 20,600 फुट बुलंद चोटी लातोक में फंसे रूसी कोपैमा को रेस्क्यू करने पर रूस ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर फैसल कहते हैं वजीर आजम की हलफबरदारी की पुरवकार तकरीब सादगी से होगी। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ ताहिर राठौर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। जनाब आपका बहुत। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे। कप्तान इस खुशी के मौके पर पुराने साथियों को ना भूले। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स और अपने मद्दाह फनकारों को भी तकरीब में शमूलियत की दावत दे दी। इमरान खान होंगे वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान रवा माह बतौर वज़ीर आज़म ओहदे का हलफ उठाएंगे। 21 साल जद्दोजहद के बाद यह दिन इमरान खान की जिंदगी का यादगार दिन होगा। कप्तान ने इस दिन को मजीद यादगार बनाने के लिए पुराने साथियों को भी मदऊ कर लिया। भारत के साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू को तकरीब हलफबरदारी में शमूलियत की दावत दी गई है। तहरीक इंसाफ ने मिस्टर परफेक्ट बॉलीवुड हीरो आमिर खान को भी तकरीब में शामिल होने का दावतनामा भेज दिया है। आमिर खान ने 2013 में कहा था कि अगर इमरान खान वजीर आजम बने तो वो तकरीबी हलफबरदारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक का कहना है कि नवाज शरीफ की तकरीबी हलफबरदारी में गैर मुल्की शरीक नहीं हुए, लेकिन इमरान खान की तकरीबी हलफबरदारी में शरीक होंगे। नवाज शरीफ साहब ने तो किसी को नहीं बुलाया था, और जहाँ तक मेरे इल्म में है पाकिस्तान की आज तक किसी भी हल्फ की जो रस्म है उसमें आज तक कोई, जहाँ तक मेरे इल्म में है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई गैर मुल्की सरबराह नहीं आया। भारतीय क्रिकेटर्स और अदाकार को मदऊ करने का ऐलान फवाद चौधरी ने किया। उनका कहना था कि आलमी शख्सियात को मदऊ करने का फैसला दफ्तर खारजा करेगा। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 24 न्यूज। वो हम अपना जारी और सारी रखेंगे, और कोई मैं समझता हूँ रुकावट अब इमरान खान के वजीर आज़म बनने के ऊपर नहीं है। मैं बहुत जल्द जो है इस्लामाबाद जाऊँगा, जाकर अपने कप्तान इमरान खान को ये सीट ये तोहफे में पेश करूंगा, क्योंकि 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने मुझे थपकी दे के भेजा था कि जाओ जाकर आबिद शेर अली का, राना सना का मुकाबला करो। तो आज दोनों दो मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा क़यादत के अंदर शुमार होते थे और हर जगह पेश नजर आते थे। आज अवाम ने उनको मुस्तरद किया है और अल्लाह ताला ने फरूख हबीब दोबारा गिनती में एक बार फिर से कामयाब करार पाए हैं। फरूख हबीब आबिद शेर अली का मुकाबला कर रहे थे और रिकाउंटिंग में एक बार फिर से फरूख हबीब ही कामयाब करार पाए हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि जितने वोट बढ़े हैं वो इस फॉर्म के आपके अंदर सामने हैं, नजर आ रहे हैं कि पहले भी मेरा 1,12,000 वोट था, अब भी 1,12,000 वोट है। और आपके लिए ये भी इतला है कि अभी फाइनल रिजल्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह मिली है। मेरे 104 वोट हैं, आबिद शेर अली के जो है वो 37 वोट हैं उसके अंदर, और वादे बर्तरी से जो है उसके अंदर भी हम जीते हैं। अभी जो कोई रिजेक्ट वोट हुए हैं उनकी गिनती जारी है, वो फॉर्म 48, 49 आज तक जारी हो जाएगा। लेकिन मैंने एक बात पूरे यकीन। फरूख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 7 करोड़ डॉलर हो गए हैं। इस बारे में जानते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के हवाले से। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया है। ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब 7 करोड़ डॉलर्स हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं इनमें 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया है। हबीब खान से इस बारे में जानते हैं। हबीब, ये तो अच्छी खबर है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए।
जी बिल्कुल, देखें स्टेट बैंक की जानिब से एक अच्छी खबर सामने आई है कि मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर है उनमें 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता हफ्ते जो 27 जुलाई को जो हफ्ता खत्म हुआ है उसके अदाद शुमार जो स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो है मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर है इस वक्त 17 अरब 7 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जबकि जो स्टेट बैंक के अपने ज़खायर है उसमें 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो है 10 अरब 34 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। तो इम्कान जो जाहिर किए जा रहे थे कि इलेक्शन के नतीजे के बाद जो मुल्की मईशत में एक अच्छे जो असर पड़ेगा वो अभी से नजर आना शुरू हो गया है और मुल्की जो ज़र मुबादला के ज़खायर है उसमें भी 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का इजाफा देखने में आया है। जी शुक्रिया हबीब खान। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम से मुतालिक होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि IMF और CPEC आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान CPEC की सरमायाकारी से मुतालिक तमाम तफसीलात जारी करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम से मुतालिक होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि IMF और CPEC का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान CPEC की सरमायाकारी से मुतालिक तमाम तफसीलात जारी करेगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि IMF और CPEC का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान CPEC की सरमायाकारी से मुतालिक तमाम तफसीलात जारी करेगा। रहीम यार खान के नवाही इलाके कोट सिमाबा में कुएं की खुदाई के दौरान 2 मजदूर नीचे दब गए। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक मजदूर की लाश को बाहर निकाल लिया गया है। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर भट्टी से। आमिर, क्यों कर यह हादसा पेश आया? पहले हमारी मदद करते। ये वाकया पेश आया है जिला रहीम यार खान के सिटी कोट समाबा के नवाही गांव चाहगामन में, जहां ये एक बस्ती है जहां पर आपको मैं फुटेजेस दिखा दूं। ये हट जाए तो ये वो करेने हैं, ये जो करेने हैं इस वक्त काम कर रही हैं। ये सुबह 7 बजे वाकया दरपेश आया है कि जहां जिम्मेदार ने अपने मजदूरों को, अपने मुलाजमीन को ये हुक्म दिया कि आप ये कुएं की खुदाई करें। ये कुआं था जो 30 फुट गहरा था पहले और 15 फुट चौड़ा था। मालिक की तरफ से यह अहकाम जारी किए गए थे उनको कि इस कुएं को दोबारा से जो है रिपेयर किया जाए। ये पक्का था, फिर से इसको मजीद मजबूत करने के लिए उन्होंने अहकाम जारी किए थे। जो मुलाजमीन थे उनमें जो 2 मजदूर थे वो। ठीक है, शुक्रिया आमिर भट्टी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। LPG की जो कीमतें हैं एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं और अवाम पे एक बार फिर से महंगाई का ये बॉम्ब फोड़ दिया गया है। LPG के हवाले से आपको आगाह करें, LPG की जो कीमतें हैं, LPG एक बार फिर से 7 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई है और महंगाई का ये बॉम्ब एक बार फिर से अवाम पे गिरा दिया गया है। ओगरा ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी को रोकने के लिए रेंजर से मदद लेने का फैसला कर लिया है। बिजली चोरी रोकना पुलिस के बस का काम नहीं है। आपको बताएं कि सखर से खबर दे रहे हैं, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी को रोकने के लिए रेंजर से मदद लेने का फैसला कर लिया है। बिजली चोरी रोकना पुलिस के बस की बात नहीं है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस घंटे